गीला धान भी खरीदा जाएगा, वजीर आतम कुमार रेड्डी की वजाहत। वजीर आतम ने धान की खरीदारी की पेशरफ्त पर कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब तक आसंगी सीजन के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी हो चुकी है। हुकूमत का हदफ इस सीजन में कल 70.13 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। वजीर ने हुक्काम को हिदायत दी कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तमाम खरीदारी मराकिज़ पर मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मेरी बातों को गलत अंदाज में पेश करके मुझे टरविल किया जा रहा है। मैंने अमूमी तौर पर वजीरों के बारे में बात की थी। इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मैंने कांग्रेस वजीरों के बारे में कहा हो। मुझे बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। वजीर कुंडा सूर्या। కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఆపాదిస్తున్నాను. నేను కాంగ్రెస్ మంత్రులు అనేటువంటి మాట ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు. జనరల్ గా మంత్రులు అనేటువంటి మాట మాట్లాడాను. అందరూ అని కూడా మాట్లాడలేదు. జనరల్ గా మంత్రులు అని మాట్లాడిన దాన్ని ఎవరి ఆలోచనను బట్టి వాళ్ళు దాన్ని అర్థం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ మైండ్ ను బట్టి వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకుని నేనేదో తప్పు మాట్లాడినా మా మంత్రులు అవినీతి చేస్తా ఉన్నారు అనే పద్ధతిలో నేను మాట్లాడినా అని చెప్పి ట్రోలింగ్ చేయడం చాలా బాధాకరం. వెంటనే దాన్ని ఆపాల్సిన అవసరం ఉన్నది. లేకపోతే నేను సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళకి తప్పకుండా నేను కంప్లైంట్ ఇస్తాను. तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकिज़ को प्ले स्कूल के मेयार तक अपग्रेड करने का ऐलान किया है। ख्वातीन और बच्चों की फलाह और बहबूद की वजीर सीताका ने कहा कि अमा माता आंगनवाड़ी बाता मंसूबे के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को प्राइमरी तालीम दी जाएगी। तमाम आंगनवाड़ी मराकिज़ को जदीद सहूलियात से लैस किया जाएगा ताकि प्राइवेट प्ले स्कूल्स के मेयार के बराबर बनाया जा सके। वजीर ने हुक्काम को हिदायत दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाए और रियासत भर में 85 नए मराकिज़ कायम किए जाएं। जिन मराकिज़ में बुनियादी सहूलियात नहीं होंगी उन्हें करीबी सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा। मनी आंगनवाड़ी असातिज़ा ने भी बढ़ाए गए होनरारियम के लिए वजीर का शुक्रिया अदा किया है। BRS अंडे पर से पर नोचने जैसी सियासत कर रही है। MP चामिला। शराब पीकर आग में कूदने वाली बंदर जैसी है कि TR की सियासत। मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए तेलंगाना का मुंतखब होना फख्र की बात है। BRS एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी की तरह बर्ताव नहीं कर रही है। MP चामिला किरण कुमार रेड्डी। కోడి గుడ్డు పైన ఈకల్ పీకే రాజకీయం చేస్తుంది BRS పార్టీ. ఇక పోతే సైకో రామ్ కళ్ళు దాగిన కోతి నిప్పులు తొక్కితే ఎట్లుంటుందో ఆయన రాజకీయం అట్టుంది. రోజుకొక ఎపిసోడ్, రోజుకో కథ. దీనికి ప్రజలకు అసలు సంబంధమే లేదు. ప్రజాపాలనకు సంబంధం లేదు. ఒక అపోజిషన్ పార్టీ రాజకీయాలలో చేసే కార్యక్రమాలకు వీళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలకు అలా అంతరం పొందడం లేదు. ఎక్కడ ఎవరు ఏం మాట్లాడతారా, ఎక్కడ అక్షరాలు పొల్లు తప్పు మాట్లాడతారా, ఎక్కడ ఎవరన్నా సరే ఎంతోమంది అధికారులు పనిచేస్తుంటారు, కింద స్థాయి వ్యవస్థ పనిచేస్తుంటుంది. కింది స్థాయి వ్యవస్థలు కూడా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు మానవులే తప్పిదాలు చేస్తుంటారు. ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్లు అవుతుంటాయి, ఫ్లెక్సులు పెట్టే కాడ తప్పులు చేస్తుంటారు. కొంతమందికి విఐపీలు వచ్చినప్పుడు అతి ఉత్సాహంతో మిగతా వాళ్ళందరూ చేస్తున్నా ఎవరో ఒకరు ముందుకొచ్చి ఒక చిన్న తప్పిదమో. నిన్న ఈ యొక్క మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్లో వచ్చినటువంటి విదేశీయులు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ టేబుల్స్ వాళ్ళకి వేసి వాళ్ళ టేబుల్స్ మీద వాళ్ళకి వైట్ కర్చీఫ్స్ వేసి కాలు దుట్టుకోవడానికి. సరే ఎవరో ఒకరు మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు అతి ఉత్సాహంతో వాళ్ళకి తెలియకనో, ఎందుకంటే అన్ని వ్యవస్థలలో మన BRS పార్టీకి ఉన్నంత తెలివితేటలు అయితే ఉండవు కదా. ఊర్లో వాళ్ళు ఎవరో తెలియకనో వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ మర్యాద చేస్తే ఇంకా మంచి పేరు వస్తుందో అనే ఆలోచనతో ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఖర్చీఫ్ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళి తీసుకొని కాళ్ళు అద్దు ఉంటారు. దానికి కూడా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా రేవంత్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వీళ్ళు ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిరు. దాన్ని ఏం తెలుసా, భారతదేశ వ్యాప్తంగా మహిళలకు విలువలేని మహిళల గురించి మాట్లాడే తెలంగాణలో
మహిళా ఆత్మగౌరవం ఏమైపోయిందనే సబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని మళ్ళీ ట్యాగింగ్ ఎవరికి చేసిర్రు? సోనియా గాంధీ గారికి. పోనీ వీళ్ళు సోషల్ మీడియా వీళ్ళది ఎవరు చూస్తారో చూడరో అని నమ్మకంతో అట్లీస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానానికన్నా చూపించాలని ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్ ఇండియాకి రావడమే ఫస్ట్ టైం. అది తెలంగాణకు రావడం గర్వకారణం. దీన్ని ఎట్లా డెంటు కొడదామన్న ఆలోచనే ఉంది తప్ప దాని గురించి ఇప్పటివరకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయినందుకు అపోజిషన్ పార్టీ కూడా వాస్తవంగా ప్రజలపై 10 ఏళ్ళు అధికారం ఇచ్చి రబ్బర్ చెప్పులు ఉన్న వాళ్ళకు బంగారు పల్లాలకు తీసుకొచ్చింది తెలంగాణలో. వాళ్ళకి అధికారం వచ్చినాక వాళ్ళ ఆస్తులు పెరిగిన విషయం. అంటే ఇదంతా వాళ్ళు పెరిగిందే మన మీద. మీరు వేసిన ఓట్ల మీద కుబేర్లేరు. ఇవాళ తెలంగాణ గురించి గొప్పగా మాట్లాడాలన్న ఇంట్రెస్టే పోయింది వాళ్ళకు. సన్నబియ్యం ఎట్లా నడుస్తున్నాయి, భూభారత్లు ఏం చేద్దాం, ఇంద్రమ్మ ఇల్లులల్లో నిజంగానే ఏమన్నా తప్పిదాలు అవుతున్నాయా, వాటిని ఎట్లా సరిదిద్దుదాం, ప్రజలకు ఎంత బాగా చేద్దాం. అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పథకాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ పథకాలు ప్రజలకు లబ్ధి చెందుతున్నాయా లేదా, ఈ సంవత్సరము ఊర్లలో సమస్యలు ఏమున్నాయి, ఐకేపీ సెంటర్ల దగ్గర ఒడ్లు అవి అమ్మకం అయ్యేటప్పుడు ఏమన్నా ఉంటే కలెక్టర్ల దగ్గరికి మరి అపోజిషన్ పార్టీలు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ఏ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు పోయి అక్కడ ఒడ్లు సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఉత్తమ్ కుమార్. तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन के एक वफ्द ने मीडिया इदारे इंडियन न्यूज़ नेटवर्क INN के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद समीर वली उल्लाह से मुलाकात की और फेडरेशन के मुआविन बानी हबीब अली अल जिलानी मरहूम की एलिया मोहतरमा को फेडरेशन की सालाना अवार्ड तकरीब के मौके पर उनकी जानिब से पेश करदा कीसा ज़र के लिए शुक्रिया अदा किया। वफ्द में फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुही अल्दीन, खाजिन M.A. मोहसिन और रुकन अमला मोहम्मद हबीब अल्दीन शामिल थे। फेडरेशन ने मीडिया अकेडमी हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी करके हबीब अली अल जिलानी मरहूम की एलिया मोहतरमा को 1 लाख रुपए 5 साल तक के लिए मायना 3000 रुपए वजीफा मंजूर करवाया। फेडरेशन ने इस मरहूम सहाफ़ी के नाम से गुज़िश्ता दिनों रकमी अवार्ड भी दिए हैं। फेडरेशन उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के साथ उनकी पेशा वराना सलाहियतों को फ़रोग़ देने मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों का नज़्म करता है। मसनूई जहानत पर फेडरेशन बहुत जल्द एक वर्कशॉप मुनक़िद करेगा। इंदिरामा स्कीम के तहत घरों की तकसीम में बेकायदगियां होने पर कांग्रेस कायदीन आपस में उलझ पड़े। भद्राचलम को थागोड़म जिला के मनोगोरो तहसीलदार दफ्तर के सामने झगड़ा हुआ। इंदिरामा मकानात की तकसीम में गैर मुनसिफाना रवैये पर एतराज़ उठाया गया। झगड़ा इतना बड़ा कि कांग्रेस के लीडर एक दूसरे को चप्पलों से मारने लगे। ये वाकया अन्निरम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडरों के दरमियान पेश आया। सियासतदानों की आपसी लड़ाई अवामी स्कीमों पर सवालिया निशान लगा रही है। ఇంత మరి నువ్వు నన్ను అడగాను ఇన్ఛార్జి చేసిన ఇల్లు నేను చేసిన చెప్పు ఇల్లు నేను చేసిన ఎన్నోతో నువ్వు చెప్పు పార్టీ లంచోడు మా మీద ఏడుపు నీ తమ్ముడు మా ఇంటికి వచ్చుకోవట్లేదు నువ్వే పెచ్చకాలు చెప్పి
నువ్వు జాగ్రత్త కాదు నువ్వు బోల్ నువ్వు ఉన్నావు కానీ ఇప్పుడు बुधुपली जिला में किसानों ने कांग्रेस रहनुमा को जमीन पर गिराया। नमिन निपली आईकीपी सेंटर में किसानों ने सड़क पर बैठकर हड़ताल की क्योंकि हुकूमत सख्त दालें खरीद नहीं रही थी। राहगीरों को गालियां देने पर कांग्रेस रहनुमा इटल कुमार को किसानों ने रोक लिया। किसानों ने कहा कि हुकूमत सख्त दालें खरीदती नहीं, फिर तुम हमें ही गालियां देते हो। इटल कुमार को सड़क पर जमीन पर गिराया गया। ये वाकया किसानों और कांग्रेस रहनुमा के दरमियान शदीद तनाज़े की निशानदेही करता है। हैदराबाद के सीपीओ डीजी सीवी उन्नद ने वर्ल्ड पुलिस सिमट 2025 में आलमी एजाज हासिल किया। उन्होंने दुबई में मुनक्किदा सिमट में एक्सलेंस इन एंटी नारकोटिक्स अवार्ड हासिल किया। सीवी उन्नद हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनकी टीम को मुनशियात की स्मगलिंग रोकने, आगाही मुहिम्मात चलाने और कम्युनिटी पर मबनी इक़दामात करने पर सराहा गया। एक 3-8 ममालिक की पुलिस फोर्सेस के दरमियान ने अपनी जिद्दत और मेहनत से नुमाया मकाम हासिल किया। उन्नद ने अपनी टीम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ये एजाज़ पूरी भारतीय पुलिस का है। हैदराबाद पुलिस ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए सफ़र करने वाले खानदानों के लिए हिफाजती हिदायत जारी की हैं। साइबराबाद पुलिस ने शहरियों को चोरी से बचाव के लिए इजाफी एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की है। डीसीपी एलसी नाइक ने कहा कि खाली घर चोरों के लिए आसान शिकार होते हैं, इसलिए सफ़र से पहले मकामी पुलिस को इत्तला दें। अहम हिफाजती इक़दामात में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, मोशन सेंसर अलार्म्स का इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर सफ़र की मालूमात न देना शामिल है। शहरियों को पड़ोसियों के साथ ताउन करने, वाच ग्रुप्स की हिमायत करने और गाड़ियों को इजाफी तालों से महफूज करने की भी हिदायत दी गई है। मशकूक सरगर्मी की इत्तला के लिए 100 साइबराबाद कंट्रोल रूम 9490617100 व्हाट्सएप 9490617444 पर राब्ता करें। हैदराबाद मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबले में हिस्सा लेने वाली ख्वातीन ने जुम्मा को एआईजी अस्पताल का दौरा किया। ये दौरा तेलंगाना हुकूमत की एक काविश के तहत किया गया, जिसका मकसद रियासत की
तिब्बी सियाहत को उजागर करना है। मिस वर्ल्ड की शुरा ने अस्पताल के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया और जदीद तिब्बी सहूलियात का मुशाहिदा किया। तेलंगाना हुकूमत की ये कोशिश है कि आलमी सतह पर रियासत की तिब्बी खिदमात की पहचान बनाई जाए। तिब्बी सियाहत के फ़रोग़ के लिए ये एक अहम कदम समझा जा रहा है। मिस वर्ल्ड की ये तकरीब रियासत के मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने की समत में एक मुस्बत इक़दाम है। महफिल बिरयानी में छिपकली निकल आई। जब गाहक ने पूछा ये क्या है तो मालिक ने कहा ये अच्छी तरह तली हुई है और मज़ेदार है। इब्राहीमपट्टनम म्यूनिसिपैलिटी के सागर रोड पर महफिल फैमिली रेस्टोरेंट में गाहक चिकन बिरयानी खा रहा था कि अचानक बिरयानी में छिपकली नजर आई। गाहक अचानक घबरा गया और खौफजदा हो गया। जब गाहक ने मालिक से बात की तो इसे कहा गया कि चूंकि ये अच्छी तरह तली हुई है खा लो, जिस पर गाहक शदीद नाराज हुआ। गुज्जर कृष्णा रेड्डी ने शीरगोदे गांव की पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाकर कार्रवाई की। तनख्वाह वक्त पर न मिलने की वजह से माली मुश्किलात से परेशान होकर हवनगौड़ ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के राचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट इलाके में गोवर्धन नामी हवनगौड़ ने ज़हनी दबाव के बाइस जान दी। गोवर्धन की बेटी गर्दों की बीमारी में मुब्तला है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। तनख्वाह वक्त पर न मिलने की वजह से वो बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा था और माली मुश्किलात का शिकार था। जब घर में कोई नहीं था तो इसने पंखे से लटक कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद शहर के सिकंदराबाद इलाका में पुलिस ने एक जिस्म फिरोशी के अड्डा पर छापा मारा है। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कहबागिरी के अड्डा के ऑर्गेनाइजर बांग्लादेशी खातून और एक गाहक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 ख्वातीन को वहां बाजियाब करवाया गया, जिनमें एक बांग्लादेशी शहरी शामिल है। ये कार्रवाई कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम गोपालपुरम पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। गिरफ्तार शुदगान में 36 साला बमल सीन उर्फ सबरता कूली, 29 साला हुसैन उर्फ मिला मुतवत्तिन बांग्लादेश, 36 साला शेख नासिर अली मुतवत्तिन मगरबी बंगाल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक असल सरगना बमल सीन है, जो रेजिमेंटल बाजार इलाका में ये गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। वो ख्वातीन की फराहमी के लिए एक मफरूर मुलजिम शिवा से राब्ते में था, जो पदोचेरी के 2 दीगर बांग्लादेशी शहरियों बाबू और शीका के जरिए ख्वातीन फराहम करवाता था। ख्वातीन को हुसैन के जरिए हैदराबाद पहुंचाया जाता था। पुलिस ने मकाम वाकया से नकद रकम, मोबाइल फोनस बरामद किए। कार्रवाई के दौरान 2 ख्वातीन को बाजियाब किया गया, जिनमें से एक बांग्लादेशी शहरी है। पुलिस ने बताया कि बमल सीन ग्राहकों से ऑनलाइन राब्ता कायम किया करता था। तेलंगाना के सूर्यापेट जिला के मंगाला मंडल के बारकात गोड़म फ्लाई ओवर के करीब एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही कार फ्लाई ओवर पर मौजूद बरकी खंबे से टकरा गई और पलटी खा गई। इस अफसोसनाक वाकये में 27 साला नौजवान उमराज खान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उनके साथ कार में सवार अब्दुल्ला, कैसर और यासीन जख्मी हुए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक हादसा ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। फौरी तौर पर हादसा का शिकार अफराद के मकाम की शनाख्त नहीं हो सकी, ताहम उन तमाम का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जाली दस्तावेजात का गिरोह पकड़ा गया। एलबी नगर और सरवर नगर पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया।
खुसूसी ऑपरेशन टीम 60 LB नगर जोन और सरवर नगर पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई में ये गिरोह गिरफ्तार हुआ। छोटे और बड़े जाली दस्तावेजात तैयार करने के लिए 571 जाली स्टैम्प पेपर्स, 48 जाली पैदाइश के सर्टिफिकेट जब्त किए गए। 5 जाली जात सर्टिफिकेट, 11 जाली आमदनी के सर्टिफिकेट और 2 कंप्यूटर सीट भी बरामद हुए। 25 साल से पुरानी दस्तावेजात की नकूल बनाने के लिए पुराने तर्ज के स्टैम्प पेपर्स और कई रबर स्टैम्प भी कब्जे में लिए गए। पुलिस ने इस कार्रवाई से गैर कानूनी तरीके से सरकारी दस्तावेजात बनाने और तकसीम करने की साजिश बेनकाब की है। तेलंगाना में गैर कानूनी दवाओं का गोदाम पकड़ा गया। 2.25 लाख रुपए मालियत की बड़ी मिकदार में दवाओं की बरामदगी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने 15 मई 2025 को उपल के IDA नाचारम में छापा मारा। इस गोदाम को भारतीय अद्वियात और केमिकल्स बगैर दवा लाइसेंस के चला रहे थे। गोदाम में मौजूद दवाओं में पोप्राजेन, हाइड्रोक्लोराइड, लिवोफ्लोक्सासिन और इनालप्रेल मिलेट शामिल थी। उन दवाओं पर बीच नंबर और मैन्युफैक्चरर की मालूमात नहीं थी, जो गैर कानूनी पैदावारी शक जाहिर करती है। ऐसे गैर कानूनी काम सेहत आमा के लिए शदीद खतरा है और लोग गैर कानूनी दवाओं की इत्तला DCA के टूल फ्री नंबर 180059969969 पर दे सकते हैं। अच्छा थोड़ा देख के जाना सर, थोड़ा पुराना है। हाँ लकड़ी नहीं जाना, अच्छा नहीं। वही देख के निकाले पाइप जिन्हें उसको कचड़ा है मैडम, जो कवर फॉर कैपिंग करते ना, वही बोल रहे 3 साल का। हाँ बारिश लीकेज होता है। हाँ लीकेज जाता है, ऊपर भी बारिश का लिए डब्बा रखे हुए फुल लीकेज होता है। पालाकर्ती हल्का में सास बहू की सियासत का गलबा। कांग्रेस की तैयारी इजलास में आने वाले लीडरों को रोककर पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवरपूल मंडल में यूथ कांग्रेस नायब सदर साई प्रकाश और तोटाकोरी रमेश को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया। इसी तरह देवरपूल के साबिक मंडल सदर पदु करिशन मूर्ति को भी रोका गया। हमारी पार्टी मीटिंग में शिरकत से रोकना नाइंसाफी है कहकर हामियों ने पुलिस से झगड़ा किया। पुलिस रवैये पर कांग्रेस कारकुनों में देखा गया।
हैदराबाद में चोरों से होशियार रहे। अकेले होने का ड्रामा करके गाड़ी वालों से लिफ्ट मांग कर पर्स और फोन छीन लेते हैं। मिलने पर तशद्दुद का केस करने की धमकी देते हैं कुछ लोग। कुछ चटनक के बहाने करीब आकर ब्लैकमेल भी करते हैं। सिकंदराबाद में एक लड़की ने पुलिस कांस्टेबल से लाख रुपए लूट लिए। दूसरी लड़की ने भी फरार की कोशिश की मगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गई है। क्रेडिट कार्ड बिल की वसूली के लिए आए एजेंट पर कुत्ता छोड़ दिया गया। हैदराबाद के मधवरा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में यह वाकया पेश आया। जवाहर नगर के नंदवर्धन पर 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड कर्ज बाकी था। बिल की वसूली के लिए आए एजेंट सत्या नारायण पर मालिक ने कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ता अचानक हमला करके एजेंट को काट लिया, जिससे वो जख्मी हो गया। मुतासिरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। पालहारी के लिए घर जाकर खाना पकाने वाली खातून। एक हमला औरत इंसाफ के लिए कई रोज से पुलिस स्टेशन के गिर्द घूम रही है। हमला होने के बावजूद इसे मुनासिब ग़िज़ाइयत और आराम की ज़रूरत है, मगर वो 5 माह की हमला होकर भी इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। इस दौरान माचलीपट्टनम पुलिस इसे बार बार स्टेशन के अंदर और बाहर ले जा रही है। खातून का कहना है कि इसके साथ ज्यादती हुई है और वो इंसाफ चाहती है, लेकिन पुलिस इसकी मदद नहीं कर रही। उन वजूहात और इस बेहिस्सी की असल वजह पुलिस ही जानती है। विद्येल्ला रजन और सीआई सब्बारिउडव के दरमियान तनाज़े पर एक और वीडियो मंजर आम पर। सीआई सब्बारिउडव ने कहा कि श्रीकांत रेड्डी पर केस है, इसे ले जाना ही पड़ेगा। कार में मौजूद श्रीकांत रेड्डी को पुलिस के हवाले करने का मुतालबा किया गया। विद्येल्ला रजन ने जवाब दिया, कोई केस नहीं है, एक तरफ हो जाए, और तकरार शुरू हो गई। साबिक वजीर ने सीआई को खबरदार किया कि कार को हाथ मत लगाएं। वीडियो में दोनों फरीकों के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प देखी गई। కరెక్ట్ కాదు మేము ముద్దాయి కోసం వెళ్తాం మేడం మీరు అవసరం లేదు మీ మీ రండి వస్తాను నేను కూడా మీ ఎమ్మెల్యే గారి ఇంటికి వస్తాను రండి ఏమనుకుంటున్నారు స్టేషన్ రండి వీడిని తీసుకోండి వస్తాను వస్తానండి రండి స్టేషన్ తీసుకోండి ఆపండి తీయండి మరి చేయి తీయండి కారు మేమైతే మాత్రం వెళ్ళం మేడం కార్తీ చేయి తీయండి అన్న సుబ్బనాయుడు గారు చేయి తీయండి మేడం మీకు చేయి తీయండి మేము మీరు చెప్తే వినం చేయి మేడం తీయండి ఎవరు చెప్తేను ఎవరు చెప్తే అవును మీ ఎమ్మెల్యే చెప్తే కేసులో అంటారు ముద్దాయిని ఏమా తీసుకోవాలి ఏముంటాయండి ఏం కేసు కేసులో ముద్దాయి లోపల ఉన్నాడు ముజే కారు ముజే కేసు కట్టాం ముజేయండి ఏమండి చెప్తున్నా పద్ధతిగా జరగండి ఎస్ఐ గారు జరగండి ఆపు ఎస్ఐ గారు జరగండి సార్ అడ్డం పెట్టు సార్ అడ్డం పెట్టు సార్ తీసుకొచ్చి అడ్డం పెట్టు ముజే సార్ అడ్డం పెట్టు తిరగొద్దా మేము రోడ్ల మీద మేడం ముద్దాయిని తీసుకొని తిరగద్దు మీరు తిరగండి ముద్దాయిని తీసుకొని మొత్తం తిరగద్దు ముద్దాయిని తీసుకొని మొత్తం తిరగద్దు। मोहब्बत के नाम पर नाबालिग लड़की को फांसने वाला नौजवान गिरफ्तार। बहन को फंसाकर अब इसकी छोटी बहन को भी लाने का दबाव डालने लगा। तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके जेवरात मंगवाए। आखिरकार नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, केस दर्ज, राचकुंडा पुलिस। मां के जेवरात में हिस्सा मांगते हुए आखिरी रसूमात रोकी छोटे बेटे ने। अगर हिस्सा ना दो तो मां के साथ मुझे भी जला दो कहकर चिता पर लेटकर हंगामा किया। 80 साला खातून का इंतकाल, अब तक बड़े बेटे ने ही जिम्मेदारियां निभाई। आखिरकार जेवरात देने के बाद बड़े बेटे ने मां की आखिरी रसूमात अंजाम दे। रेडी कर लिया देख
नहीं पर उठ जाओ उठ जाइए उठ तेरा यार तुम दुआऊंगा उठ लिया गाड़ी कर लिया काम तो बस कड़ी कर लेंगे हेलो